So, the Garos, since time immemorial, we are in support of the separate state movement. That is why the Meghalaya were created from the state of Assam in the year 1972. We were living peacefully yet. In Meghalaya, we are living peacefully with our brothers. In Meghalaya, we have three tribes: Garo, the Khasi, and Jaintia. We are living peacefully. We are not enough since our state has achieved the 50 years. We have celebrated the 50 years of its existence. Now we have grown up. Now we have to separate it. My friend, my good friend, I think he would not be here today. The leader from Khasi is the president of one of the oldest political party in our state, HSPDP. He give a message to you, his support for the Tripura land. Today I feel proud and I feel as oneness by hearing your language quite similar with our Garo language. One day, convention, Salsali convention, I heard it. It is very much similar with our Garo language. Chimni, we also call Chimni. So, I feel proud for being in this meeting today. And I wholeheartedly will support to the Tripura land demands. No matter what it comes to. As our leader P.S. Sangma said, if the America can have 50 states, why can India cannot create a states 50 or more than 50 states? We have different tribes. We have, as our General Secretary of ITFT has spoken, more than 500 priestly states has joined by the agreement, instrument of association, 1947. So why this government, why the government center and the state government cannot acknowledge our rights? They should acknowledge us. We the tribals, if compared to other community, we are micro, we will say. We cannot compare in terms of population. But the Constitution has guaranteed us, Constitution has given us the right. We have to fight. We have to express our demand. We have to express our needs to the government. If Telangana can be created, if Jharkhand can be created, if Maharashtra can be created, if Gujarat can be created, why cannot Tripura land? Why cannot they create Gurkha land? Why cannot they create Garo land? Equal justice to be prevailed. So I don't want to prolong my speech. As I have spoken, I am very much proud today for being here in your midst. And we have our other leaders with us. I hope all the conscience of NFNS is in full support of Tripura land.
as I've said. So thank you for this opportunity. Thank you for coming and being part of this meeting. Thank you, all of you. Long life LFNS, long life IBFT. Thank you, Jai. Thank you very much, sir, for giving your valuable speech. And now may I request Mr. Sudeep Pradhan from Sikkim Independent Director of NRL यहाँ कुछ बात शेयर करने के मैं सर को अनुरोध करूँगा. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Respected ITFT President Prem Kumar Riyanji, National Federation of New State President Dr. Manish Tawangji, Honorable Minister to Government of Tripura Suklacharanji, and all other dignitaries on the dais, and my dear brothers and sisters. It is a great honor and pleasure for me to be invited to this forum today. I'm from a very small state like yours, Sikkim. This is my first visit to Tripura, and I am not aware of Tripura much, but still I came to know a little bit about your culture, your tradition, your race and everything. And political background also. I'm happy that you have a good aligned partner with IPFT and BJP, and our Honorable Minister, he briefed me a little bit about your party and what is happening in Tripura, which is good to know. I wouldn't talk about your internal things much because I'm not supposed to, or I'm not aware of it. But I would definitely say that under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have been advised and instructed that we work for the welfare of Northern state and his active policy. And I've been appointed as an independent director in one of the PSUs of Ministry of Petroleum and Natural Gas. And we've been doing a lot of work in terms of CSR in northeastern states. And I'm very much privileged that I've been invited to Tripura. And I would like to work jointly with you all for the development of the state. And in course of time, I would visit once again, or maybe more, to see what can be done to your state and your community as a whole. And definitely, I would like to thank the organizing committee also for inviting me, and for upliftment of and welfare and development of your state. The ministry would be very much happy and privileged if given a chance to come back and work with you all again. I don't have much to say, but still, I was really happy to see
that you all are working towards the development, and we will definitely cooperate and work with you in coming future. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech in front of us. Tabuk sang khnalainai, sini bus kango kok naraknai, Mr. Neeraj Khandawale, working president. अभी हम सुनेंगे मिस्टर नीरज खंडवाले सर की तरफ से विदर्भ स्टेट। थैंक यू ब्रदर। हिंदी चलेगा? चलेगा, गुड। सबसे पहले आईपीएफटी के फाउंडर लेट श्री एनसी देव बर्मन जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। आज के इस आईपीएफटी और एनएफएनएस के जॉइंट कन्वेंशन में प्रेसिडेंट आईपीएफटी श्री प्रेम कुमार जी रियान साहब, एनएफएनएस प्रेसिडेंट डॉक्टर मुनीश तमांग साहब, हमारे विदर्भ राज्य आघाड़ी के भूतपूर्व अध्यक्ष और एनएफएनएस के अभी के सचिव एडवोकेट स्वप्नजीत सन्याल साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर शुक्ला नोटिया जी, एडवोकेट सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट निरुप रेड्डी जी, प्रेसिडेंट राधाकृष्ण साहब, प्रसाद राव जी साहब, डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व में स्थित 11 जिलों का प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 3.5 करोड़ है, ऐसे विदर्भ राज्य का मैं विदर्भ राज्य आघाड़ी नाम के पॉलिटिकल पार्टी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। साथियों, जो व्यथा मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ रखी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा में विदर्भ राज्य का भी यही हाल है। विदर्भ राज्य का जो अस्तित्व है वो महाभारत और रामायण काल से आपको इतिहास में और पुराणों में पढ़ने मिलेगा। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि प्रभु रामचंद्र जी के जो ग्रैंडफादर थे, ही बिलोंग टू विदर्भ। आपने अगर महाभारत में रुक्मिणी अपहरण, किडनैपिंग ऑफ रुक्मिणी, ये अगर एपिसोड पढ़ा होगा तो दैट रुक्मिणी बिलोंग्ड टू विदर्भ, और भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको वो भगा करके ले जाते हैं। विदर्भ की मांग, जो डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ विदर्भ है, इट इज मोर देन 100 years ओल्ड। विदर्भ राज्य आघाड़ी और एनएफएनएस के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है एडवोकेट श्रीहरि अणे साहब, इनके ग्रैंडफादर बापूजी अणे, इन्होंने विदर्भ राज्य की मांग पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की थी कि विदर्भ का अलग राज्य बनना चाहिए। साथियों, मैं उन सब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट जो कंसेप्ट है स्मॉल स्टेट्स की, ये जो कंसेप्ट है न्यू स्टेट्स की, इट्स अ पॉलिटिकल डिमांड। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाके इसके पहले जो स्टेट्स बने हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, इनका अगर हम फॉर्मेशन का पैटर्न अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर पता करेंगे, और रिसेंटली जो तेलंगाना फॉर्म हुआ है, तो हमको ये बात स्पष्ट तौर पे जाहिर होती है कि सेंटर में अगर गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की मजबूत गवर्नमेंट ना हो, बल्कि एक अलायंस हो, एक कोएलिशन गवर्नमेंट हो, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा अकोमोडेटिव और सेंसिटिव टुवर्ड्स पब्लिक इश्यूज है। ऐसा मैं इतिहास के अध्ययन के बाद बोल रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब जो राज्य फॉर्म हुए,
उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पार्लियामेंट के अंदर में एक सशक्त पक्ष के तौर पे नहीं थी। उनको एनडीए का सपोर्ट था, जिसमें बाकी पार्टियों की भी सरकार में शिरकत थी। लिहाजा ये जो नए राज्यों की मांग है, इसमें लोग जो बड़े राज्यों में छोटा सा प्रोविंस या छोटा सा पार्ट उस राज्य का अपने आप को डेवलपमेंट के लिए सफोकेट होता पा रहा है, उसे घुटन महसूस होती है, तो वो अपने राज्य की मांग सामने रखता है। और ये जो मांग हम कर रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरालैंड की हो, चाहे विदर्भ की हो, बुंदेलखंड हो और कहीं की हो, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, a right vested under Constitution to ask for a separate state of Tripura, Vidarbha and for that matter any other region। तो अगर ये मांग हम कर रहे हैं अलग राज्य की, स्मॉल स्टेट्स की, न्यू स्टेट्स की, तो साथियों हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई देशद्रोही नहीं है, हम इसी भारत के, इसी इंडिया के हम भी एक नागरिक हैं, हम भी अपना टैक्स भरते हैं, हमारे मेहनत की कमाई से इस देश को हम सीखते हैं, और जो हमारी अस्मिता है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा कल्चर है, इसके लिए हम अपने राज्य की मांग करते हैं। साथियों, ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि जितना बड़ा राज्य रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट। ये मैं मेरे अनुभव से बताता हूं। जैसे आज त्रिपुरा में हम लोग बैठे हैं, इट्स ए स्मॉल स्टेट बट हैविंग इंडिजिनस पीपल। महाराष्ट्र में जहां हम लोग विदर्भ राज्य की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, इट इज मुंबई, एंड बिलीव मी द डिस्टेंस फ्रॉम नागपुर टू मुंबई इज मोर देन 900 किलोमीटर्स। जबकि मैं जहां रहता हूं नागपुर में, वहां से तेलंगाना की राजधानी 400 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की राजधानी 400 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की राजधानी 250 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की राजधानी 300 किलोमीटर। मेरे अपने स्टेट की जो कैपिटल है, उसे मुझे पहुंचने के लिए 900 किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन अ स्मॉल ट्राइबल कमिंग फ्रॉम अ रिमोट प्लेस लाइक गढ़चिरौली कैन एवर ट्रैवल टू मुंबई फॉर गेटिंग हिज वर्क डन। मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्ला जी यहाँ पे आज हाजिर हैं, और शुक्ला जी को मैं आज से नहीं काफी वर्षों से जानता हूं। ये कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेटिव है, ही रिप्रेजेंट्स द कॉमन मैन ऑफ त्रिपुरालैंड। विदर्भ के अंदर, वेरी सॉरी टू टेल यू दैट फ्रेंड्स, हमारे सारे जो नेता चुन करके आते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे और कोई भी हो, जिस दिन वो बंबई जाते हैं, उनको बंबई की हवा लग जाती है, वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। एंड नौटिया जी, आपके लिए हैट्स ऑफ टू यू, जो आज आप भी अभी भी अपने जमीन से जुड़े हुए हैं। विदर्भ का नेता बंबई जाने के बाद पहला काम अगर वो करता है, तो बॉम्बे के प्राइम एरिया में 250-300 बड़े जहां पे फ्लैट स्कीम्स होती हैं, उसमें उसका अपना एक 27th फ्लोर पे उसका 3 BHK डुप्लेक्स बना लेता है, पेंट हाउस। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। उसको नागपुर में आने के बाद उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जाने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर स्टेट का कैपिटल अगर कॉमन मैन के रीच के बाहर है, तो उसके प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। कल नागपुर के अंदर में रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ, बारिश हुई, हजारों लोग वहां से विस्थापित हो गए। फ्लड से भी भयंकर सिचुएशन नागपुर में है। और अभी मैं अपडेट ले रहा था, पीपल डोंट हैव फूड टू ईट। और अगर हम ये सोचेंगे कि बंबई से सरकार का कोई आदेश निकलेगा, तो बंबई 900 किलोमीटर दूर है। अगर छोटा राज्य रहेगा जिसका कैपिटल विद इन रीच रहेगा, तो हम जाकर के वहां अपने एमएलए से, हमारे मिनिस्टर से अपना काम करवा सकेंगे। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, इसलिए नए राज्यों की, छोटे राज्यों की मांग है, प्रैक्टिकल मांग है, इट्स अ प्रैक्टिकल डिमांड। दूसरी
इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा आमतौर पे होता है कि बड़े राज्यों में जो सबसे विकसित शहर है उसको और विकसित करने के लिए, विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे डंप किए जाते हैं। नागपुर में सबसे ज्यादा पावर इंडस्ट्रीज है। नागपुर का, विदर्भ का पूरा कोयला, सारे मिनरल्स, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग टेकन टू मुंबई। क्योंकि मुंबई में अगर ये बत्ती जलना है दिए की, तो विदर्भ का कोयला, विदर्भ की बिजली उनको चाहिए है। हमारी मांग ये है कि हमको बंबई से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर बंबई में किसी के घर में अगर लाइट जलता है तो विदर्भ के भी झोपड़ी में लाइट जलना चाहिए। वहां अंधेरा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो आर्टिकल 2 और 3 में स्टेट फॉर्मेशन की प्रोविजन की गई है। मेरी धारणा है, मैं विदर्भ राज्य आघाड़ी का हूं, अगर किसी के हाथ में हथकड़ी लगी है और वो भूखा है तो मैं उसे रोटी नहीं दूंगा, मैं पहले उसकी हथकड़ी तोड़ूंगा, मैं उसको एम्पावर करूंगा, वो खुद अपनी रोटी कमा लेगा। हमारे छोटे राज्यों की मांग करने वाले लोगों की यही प्रॉब्लम है कि हम उसको रोटी खिला करके डिपेंडेंट कर डालते हैं, उसको पैकेज देते हैं और उसको हम लाचार बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हथकड़ी तोड़ी जाए, उसको फ्रीडम दिया जाए, वो अपना विकास खुद कर लेगा। नेचर ने उसको इस तरह से बनाया है कि कोई भी अपना विकास किए बगैर रह नहीं सकता। विदर्भ का विकास हो, चाहे त्रिपुरा लैंड का विकास हो, चाहे गारो लैंड का हो, चाहे गोरखाओं का हो, वो उनके राज्यों के पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से विकास हो नहीं पा रहा है। जिस दिन हम अलग राज्य हो जाएंगे, हमारा विकास इन राज्यों से भी बेहतर होगा। जो हमारे साथी यहाँ तेलंगाना से आए हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद जो पुराना आंध्र प्रदेश था उसका विकास भी हुआ और तेलंगाना का भी हुआ। सेम थिंग हैपेंड विद मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का था, वो ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का भी बढ़ा और छत्तीसगढ़ का भी बढ़ा। तो साथियों, छोटे राज्यों की मांग से दोनों को बेनिफिट है। दिस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, ये टू वे ट्रैफिक है। अगर महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होता है तो महाराष्ट्र का भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, विदर्भ का भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य रन करने की हमको पूरी आजादी मिलनी चाहिए, हम चाहेंगे वो पॉलिसी बनेगी, हम चाहेंगे तो किसानों की आत्महत्या पर रोक लगेगी। साथियों, आपसे मैं एक और मेरा दर्द शेयर करना चाहता हूं। 850 किसानों ने 2023 में सुसाइड किया है। वी आर इन सितंबर, 1 जनवरी से लेके 23 सितंबर तक मोर देन 800 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। और कोई ऐसे ही सुसाइड नहीं करता कि उसको दिल में आ जाए कि आज मेरे को खत्म होना है, वो मर जाएगा। नहीं, द गवर्नमेंट, द पॉलिसी मेकर्स, they forced him, they created a situation कि उसके सामने जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा, इसलिए उसने सुसाइड कमिट किया। बहुत दुख के साथ मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में विदर्भ रीजन इज नोटेड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ फार्मर्स। ये स्टेटस हमको मिला है, जबकि विदर्भ महाराष्ट्र में ज्वाइन होने से पहले 1960 के पहले विदर्भ वाज अ सेपरेट स्टेट एंड नागपुर वाज इट्स कैपिटल। तो आज हमारी ये दुर्दशा है कि 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या इस साल में हुई है। इसके पहले तो काफी सुसाइड्स होते थे और ये सुसाइड्स का सिलसिला, किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का सिलसिला, गरीबों का, बेरोजगारी का मसला, ये जब तक विदर्भ की अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक ये सॉल्व होने वाला नहीं है। इस आशा के साथ हम लोग NFNS का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। NFNS में जितने भी हमारे सहकारी हैं, हम लोग ये 2 दिन के सेमिनार में डिस्कस करेंगे कि हमारी मोड ऑफ ऑपरेटिंग क्या रहना चाहिए, हमारा अगला कदम क्या रहना चाहिए, एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए। लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी जैसे बताया कि राज्य की निर्मिति, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट,
ये पार्लियामेंट का मसला है। और मैं आपसे विदा लेने के पहले एक छोटा सा जो हम लोग के दिल में है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वी स्टार्टेड एज एन एनजीओ, एक विदर्भ कनेक्ट नाम का एनजीओ शुरू हुआ जिसमें विदर्भ के जर्नलिस्ट और सारे तमाम लोग जुड़े। बट एडवोकेट श्रीहरी अने हु इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ विदर्भ राज्य आघाड़ी, उनको ये आकलन हुआ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तब तक आपके तरफ, आपके डिमांड की तरफ ध्यान नहीं देती जब तक आपकी आवाज उनके कानों में दर्द पैदा न करे। और उससे बड़ी बात है कि ये जो रूलिंग पार्टी बैठी है उसकी जब तक कुर्सी हम लोग हिलाते नहीं तब तक कोई मिनिस्टर आपके तरफ ध्यान नहीं देता। और उनकी कुर्सी हिलाने का मतलब ये है कि यू एक्वायर द पॉलिटिकल पावर एंड शो देम दैट यू आल्सो एग्जिस्ट। तो ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और इसी के लिए विदर्भ की मूवमेंट को हमने एक पॉलिटिकल डायमेंशन दिया, एक पॉलिटिकल एंगल दिया। एंड विदर्भ राज्य आघाड़ी एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने 2016 में क्रिएट किए, जिसका पहले कार्याध्यक्ष थे एडवोकेट श्रीहरी, एडवोकेट सन्याल साहब, और अभी प्रेजेंट में मैं हूं। वी फॉट ईच एंड एवरी इलेक्शन, छोटे से लेके तो पार्लियामेंट तक। नो डाउट दैट वी लॉस्ट, हमको हारने का गम नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमको फॉर ग्रांटेड लेके चलती थी पॉलिटिकल पार्टीज, अब अगर विदर्भ राज्य आघाड़ी कोई आवाज करता है, कोई कैंडिडेट खड़ा करता है, तो उसके तरफ गौर किया जाता है कि ही कैन बी अ ट्रबल क्रिएटर। और उनकी अगर पावर हिलने लगे, उनको अगर ऐसा लगे कि मुझे डिफीट होने वाला है चुनाव में, मैं हार सकता हूं, तो ये जो लोग पावर में बैठे हैं ये शायद विदर्भ राज्य की बात को पार्लियामेंट में अपने लोगों तक पहुंचाएंगी। और इसी मकसद के साथ विदर्भ राज्य आघाड़ी पिछले 8 सालों से अपना कार्य कर रही है और आगे हमको इसमें जरूर सक्सेस मिलेगा। मैं आप लोगों से विदा लेते हुए इतना ही कहूंगा कि मुझे यहाँ काफी सारी बहनें दिख रही हैं और क्रेडिट गोज टू द ऑर्गेनाइजर कि उन्होंने इतनी महिलाओं को आज यहाँ पे प्रोत्साहन दिया। डायस में भी काफी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को सशक्त करना, जिसके लिए भी पार्लियामेंट में बिल भी लाया था, अगर मूवमेंट स्ट्रांग करना है तो हर फैमिली से एक महिला को जागरूक करना हमारे डिमांड के लिए बहुत जरूरी है। इतना कहता हूं, लॉन्ग लिव एनएफएनएस, लॉन्ग लिव आईपीएफटी, लॉन्ग लिव वीरा, एंड वी विल फाइट टुगेदर एंड वी विल विन। जय हिंद, जय भारत। हम भाई তিনি সারনো মিরাজ খন্ডেবলে সারনো তিনি বিস্তঙ্গ গভীর নাংকু মনিক তামুনি সেপারেট রাজ্য সানা না আলাদা রাজ্য সানা আবার বসাই খালামনি থাকা তাবু তাবুক যেন খনালাইনাই তিনি বিস্তঙ্গ ককনারকনাই তাবু তিনি পার্টি আইপিএফটি নি वाइस प्रेसिडेंट के जमातिया सारनो कोइनाय ngaके tengkhnalainai tabo now I will request Sri S Haniel sir, General Secretary of NFNS, to share his valuable speech among us. आईपीएफटी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस मंच पर मैं नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।
सबसे पहले मैं आईपीएफटी के संस्थापक श्री एन.सी. देववर्मा जी को अपना नमन प्रस्तुत करता हूं, श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूं। मंच पर बैठे आईपीएफटी के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन स्वपन देववर्मा जी, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के प्रेसिडेंट, मेरे प्रेसिडेंट मुनीश तमंग जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के प्रणेता और मार्गदर्शक पी नीरूप जी, मेरे अजीज दोस्त जिनके साथ पिछले कई सालों से छोटे राज्यों के बारे में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शुक्ला नौटिया जी, इंडिजिनस वुमेन्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की मेरी बहन जोशुदा रानी जमातिया जी, वाइस प्रेसिडेंट के जमातिया जी, माफ कीजिए, मैं मेरे सारे भाई और बहनों और सामने बैठे मेरे आईपीएफटी के त्रिपुरा के भाई और बहनों, मैं आप सबको और आप सबके जज्बे को सबसे पहले कि आप लोग इतनी संख्या में एनएफएनएस और आईपीएफटी के इस जॉइंट कन्वेंशन में आए। जाहिर है कि इस कन्वेंशन में आने का मकसद यही है कि हम अपना राज्य किस तरीके से पाएं और हम अपने तरीके से अपने राज्य में किस तरीके से जिए। इसके पहले कई वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि एनएफएनएस में क्या हो रहा है। स्वपन देववर्मा जी ने आप लोगों को बताया, साथ ही मेरे वर्किंग प्रेसिडेंट नीरज खांडेवाले जी ने आपको बताया। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तैयार ही इसीलिए हुआ है कि छोटे राज्यों की मांग करने वालों की मांग किस तरीके से सरकारी महकमे में पहुंचाया जाए, यानी कि दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य बनने का जो कार्य है वो दिल्ली में होता है, यहाँ नहीं। फेडरेशन में बोडोलैंड की इकाई है, गारोलैंड से हमारे निकमन मरक जी आए हैं, आप लोग तो है ही, साथ में हम विदर्भवादी भी हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, यहाँ तक कि आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि लद्दाख से भी लोगों की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लड़ रहा है। बाकी सब वक्ताओं के भाषण से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि छोटे राज्य की मांग
ये दिल से जुड़ी हुई मांग है, ये हर एक इंसान के दिल की मांग है। ये मांग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये मांग हर स्टेट के खुद के ऑटोनॉमी की मांग है। आप लोगों को इससे पहले के वक्ताओं ने ये समझाया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की तरफ से, NFNS की तरफ से मैं आज अपने इस भाषण में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट ही इसीलिए हुआ है, तैयार ही इसीलिए हुआ है कि स्टेट्स की पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स के डिमांड्स हो उसको लेके आगे चले। और इस राह में IPFT की जो डिमांड गरीब की डिमांड है और उसको लेकर NFNS हमेशा तटस्थ रहा है और आगे चल के भी रहेगा। IPFT का जो पिछले कुछ सालों हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक पीरू जी हैं, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आगे का मार्ग क्या होगा, वो हमेशा बताते रहते हैं और हम उनसे सीख लेते रहते हैं। उसी सीख के दौरान हम लोगों को इस बात की समझ आती है कि भारतवर्ष सरीके इस बड़े देश में 8-10 अगर नए राज्य तैयार हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है, जबकि हर राज्य का डिमांड करने वाला IPFT हो या गारोलैंड डिमांड करने वाले हो या मणिपुर में कुकीलैंड डिमांड करने वाले हो या बुंदेलखंड डिमांड करने वाले हो, सबकी मंशा यही है कि हमारे कानून को ध्यान में रखते हुए, और ये डिमांड जो है, ये डिमांड हर क्वार्टर में आप देखेंगे, हर जगह से आप देखेंगे तो कानूनी तरीके से की जा रही है। किसी ने आज तक कानून हाथ में नहीं लिया है। और चूंकि ये कानूनन मांग है, हम आज यहाँ जो उपस्थित हैं लोग, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स को और उसकी सारी इकाइयों को ये मकसद पूरा करने के लिए एक दूसरे के मदद से होता नहीं है। अगर अलग रखें तो सारे अलग हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यही कोशिश नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की रही है, आगे भी रहेगी, और मुझे यकीन है कि IPFT का साथ हमको हर समय मिलता रहेगा और हम IPFT के डिमांड को, तिपरालैंड के डिमांड को सही समय पर सही जगह पहुंचा सकेंगे। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आगे समय आपको बताए, समय ही आप लोगों को सबको बताएगा। लेकिन एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, NS में हम छोटे राज्यों के डिमांड को लेकर प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे, और हम ये देखेंगे कि तिपरालैंड में सूरज का उदय कब होता है। आप और हम दोनों मिलकर यहीं इसी जगह उस समय को भी याद करेंगे, इस समय को याद करेंगे और उस समय को सेलिब्रेट करेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। आगे और भी वक्ता हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। मुझे लगता है थैंक यू को खंबा ही बोलते हैं। सो
Khambai. Thank you. बेलायना हामबाय बहुत बहुत धन्यवाद सार जी को फायदे चिंताओ इसे काम सामूं खनालायने चिनी ताको विश्वनाथ विश्वदेव कलय चिनी बसंगाव ताबो काम भेजे रसा खनालायना अपने बरा हायनो हाय चिनी नादो आगामी खोपते कक नाम खनामान बुका थांलायने Dr. Kurka, Sini Dinara, Pandani Wadama, Sini Prem Kumar Sir, Sardoto, Hailera Masa, Bakabai, Kakosan, Kakopuka Kulumo, Naranata, Sini Minister, Sini Kakusani, Kakosan, Kakur, Samabai, Kisar, Sabini, Kalarwani, Sini Dirbrana, Jonista Dafa, Bawari Visitai, Sini Asakan TV, biasa berada sama utama, darah di spak. Asakan TV saya besar Ishwar Bhagavan Ishwan. Sini kaite mau sama orang kami deh. Pora pratin sini traditional song kethi hai to kamera to ketal koi tina hai salo. Sini orang Tirupura ni tini koi lawan malai wani Pandawa sama kenal sedai. Narana tahu kan kenal nai. Lalta mai kamu semua jamatia, sini semua yang hari, arba semua jamatia lalta nai, ane apa yang orang di dalam makon udah saya, bos semua itu nai radio artis, tahu nak apa yang masalah kali, mata pita semua ko, और सुतो को सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ नमस्कार करूँगा हम भाई रिया रानी सबो हेली फटाफट आगोर तलारे सारकोना साफला बोचाला dangga hangga dangki babu kaprana thala agor sapra bocalah dangga hangga dangki babu thala sikaleya makaleya pandiri pidade apa mandiri pidade Tampere sini mau sama ni kalam ulis bagi kalam temuti mereka sejarah bukti canai bukti canai dan tambah dari dokter saya dulu sar wasukin batu canai agak sembuh kamnai alam sawa alam kiwo was kita kasih sawa kayak dah selain canai lain kini lesawa sini maju
마주 지는 자리 지금 와서 복잡이 생활 와서 나만 생활해 허이 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 Senin zamannya tawaru bang feramu rasai kata tawaran ini swab zara wai kirmani wai kirka kabarang bukti sangu sagara zara yang buang fa habo hutan kita yang busu kawai kirka wani ding ding baca bongai apa kalau bini tawa ding ding baca bongai apa kalau bini tawa ali monai pasai naka ini maka Oh yalla yalla khalanya kaile kaile khalanya ade kayala ade salaya hey oso salaya ade salaya sanubata no khalanya ade salaya wah tahu sini tiri puri komuniti ni unik sada falisima sini tiri puri jabar mabos ibrahim tahu wai kiri mani bagi amale thalor si amale thalor bagi amale thalor si amale thalor abo kaya se koi khatla robi bana robi bana la sabur kerja deh, kau bagi hari kau macam ni. Oke, sabur para kau nanti sini asal ni sini saya ke, ani ke jumpa jalan, orang jumpa jalan, bapak kau nuzul saya, ya kau kerja di sini aku yang ada. Blind, you are so blind. Kata apa? Kalau ni, kalau orang masa tu tahu, ya disela, rupanya dia tahu, orang masa tahu. Ayam tu macam tu. Rupanya ni. bukan saya saudara saya. Oh, tak rupanya itu saya pernah. Ada rupanya bu, sini halam betul mula. Athara teka, nembor samanda, ambor samanda, bupang berai sitese heran, hasing berai. Sampai buru rong tasir sehari kau ni, punya. Agar tahu ada sampai buru le, apa kau ni? Rajin apa kau ni? Ani sini ani apa? 10 mas 10 दिन खाजा ने apa picture हुई karena kisah itu ini angka raja asal besar raja itu macam hera apa tu ni apa sensi nama hai sresto संसार सुखी होगा बने बोले लोगों खाना जाता है sini bunga beri galai हमने ना तब खाए sini कोने रोने वही हुआ rangsang ni waye rupai ni bodo dormo kene matamna không phơi của bác
Maka sagara-gara tau mati tau pun kau kata harus sekali mati ya. Baik habai. Kamu ganggu bisa kami belum selesai. Saya main rupa bisa menghindar kita. Ganggu seni tradisional, seni pora-pora ni, music instrument. Kira banyak kau ini. Pora-pora ni, pora-pora pakai kau. Sini mau sini bias sarsapon, nama mati ni. Sini sarsapon ini dia sudah yang dangdung. Sini pora-pora baik. Sarada sumai songpreng dangdung. Tradisional sini music lo, Romanana nalai, ketika itu apa, semua orang tak ketangkap sini situasi di rumah permai. Hambai, tapi kerana dangdung. Hello. Ya apa korban ni? Hello. Hambai, jatuh ni apa korban itu? Balai ke hambai kini dangdung traditional music tamu kelang tangnai dah kotono. Tabuk ang request kelainai sini buskango payai kok narak nani bagai. Professor Radhakrishna Sarno koinai buskango payai kok ram narak nani bagai. Now I will request Professor Radhakrishna sir to come forward and give your valuable speech. Sorry, ang sini President of Nikuptik Naimangka, tabu kok narik nai, sini buskango P. Niru Reddy, Senior Advocate of Supreme Court, and also former President of National Federation for New State. Sir, please. मंच पर उपस्थित NFNS के जो ऑफिस बेयरर्स, IPFT के ऑफिस बेयरर्स, भाइयों और बहनों, प्रोफेसर राधाकृष्ण से पहले हमको बोलने के लिए कहा गया क्योंकि आप लोग हमको जानते हैं और मेरा जिम्मेदारी था कि उनको मैं आपसे उनका जो है परिचय आपको दूं। मैं जरूर दूंगा परिचय। मैं इसलिए आपका एक हिस्सा मानता हूं। कई बार आया हूं मैं, आपका जो वार्षिक जो मीटिंग होता है अस्तबल में हो या कुमलुक में हो। 2018 में मैं आया था कुमलुक में। दुख हुआ क्योंकि आपका जो भी जितना भी सभा होता है, मैं अपने साथियों को लेके आता हूं, इनके सभा में 1 लाख से कम नहीं होता जो लोग सभा में आते हैं। लेकिन उस दिन कुमलुक में 40,000 लोग अगर स्टेडियम में थे तो 60,000 लोग स्टेडियम के बाहर थे। इससे मालूम हो गया कि लोग खुश नहीं है, IPFT से खुश नहीं है। मुझे डर था कल के दिन देव वर्मा जी नहीं रहेंगे तो उनका जिम्मेदारी किसके कंधों पे रहेगा, ये पूरा IPFT। और देव वर्मा जी भी, NC देव वर्मा भी थे वो मीटिंग में। वो खामोश थे, बहुत खामोश रहते थे वो, लेकिन जब बोलना तो तगड़ा बोलते थे। आज वो
मैं ये नहीं मानता कि एनसी देव वर्मा हमारे बीच में नहीं है। जब तक आईपीएफटी रहेगा, एनसी देव वर्मा हमारे बीच में रहेंगे। एनसी देव वर्मा के बगैर आईपीएफटी नहीं है। आईपीएफटी जब तक है, एनसी देव वर्मा हमारे बीच में रहेंगे। आज भी है, आज भी इस सभा में है, रहेंगे और उनका जिम्मेदारी इनके कंधों पे से रखेंगे। शुक्ला के हमको डर था, वो तो चले गए, दूसरे लोग, ये तो दुनिया से निकल गए, दूसरे लोग पार्टी से निकल गए, अब इनका क्या होगा। लेकिन शुक्ला ने अपना जिम्मेदारी निभाया है और इनके कंधों पे अभी 5 साल है, ये करके दिखाएंगे। इससे पहले क्या किए थे उनको मालूम, लेकिन ये जरूर करके दिखाएगा। हम तो चाहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नेशनल फेडरेशन पर ये जो न्यू स्टेट से इससे पहले से हम लगे रहे कि सब जितने लोग त्रिपुरा लैंड का डिमांड लेके आगे बढ़ रहे हैं वो सब एक जगह रहे। ये तो हम चाहते ही हैं, त्रिपुरा मोता हो, आईपीएफटी हो, एक साथ रहे, लेकिन स्टेटहुड हासिल करें। लेकिन समस्या कहां आता है? समस्या आता है कि इस देश में स्टेट फॉर्मेशन का कोई पॉलिसी नहीं है। अंग्रेज के पास स्टेट फॉर्मेशन का पॉलिसी था। पहली बार 1857 में अंग्रेज ने तय किया कि इस देश में हम राज चलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, राज करेंगे। रानी के नाम पे, ब्रिटिश मोनार्की के नाम पे हम यहां राज करेंगे, ये उन्होंने तय किया था। और पहली बार स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ इस देश में? 1919 में। जब स्टेट फॉर्मेशन हुआ 1990 में, 2 पॉइंट क्राइटेरिया था। मैं वो आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास नहीं है, ना लॉ का क्लास है। लेकिन 2 पॉइंट क्राइटेरिया लगा के उन्होंने भारत को ऑर्गेनाइज किया। और भारत का कितना हिस्सा उनके पास था? सिर्फ 1/3, ओनली 1/3 ऑफ इंडिया वाज ब्रिटिश इंडिया। बाकी का पूरा, जैसे इससे पहले स्वपनदा ने जो समझाया कि 550 राज्य थे, रजवाड़े थे, तो 2/3 इंडिया वाज नॉट ब्रिटिश इंडिया। हम हैदराबाद के हैं। अंग्रेज कौन है हम जानते ही नहीं है, हम सिर्फ निजाम को जानते हैं। और भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। हमको कब आजादी मिला हैदराबाद वालों को? 17 सितंबर 1948, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। तो फिर दोबारा उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद फिर से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। फिर क्राइटेरिया था, पहले 2-फोल्ड क्राइटेरिया था, अब 3-फोल्ड क्राइटेरिया। जब 1910 में कर्जन ने तय किया कि हम ईस्ट और वेस्ट बंगाल को विभाजन करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो इस तरह जो ब्रिटिश क्राइटेरिया लगा के चलता है, जो बंगाली बोलने वालों को हम 2 स्टेट में बंटने नहीं देंगे। भारत को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर ब्रिटिश का क्राइटेरिया देखा जाए, मिलिट्री पर्पस हो या और कोई पॉलिटिकल पर्पस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो, लैंग्वेज उसमें नहीं था। तो 3 मेंबर का कमिटी बना। कब? 1929 में। उसमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तीनों मिलकर यह तय किया 1929 में कि भारत